Sri Kanad Purkayasya, Honorable MP, to give his address. Honorable Minister for Railways, Government of India, Sri Ashwini Vaishnav, Honorable Chief Minister Ji, Honorable MLA Aizol Sri Lalvin Chunga Ji, Honorable MP Sri Parimal Shuklavadya Ji, respected dignitaries and dear passengers. Today marks a truly meaningful moment for the people of Mizoram, Assam, and the entire Bareilly region, with the flagging off of the new Siren-Silchar passenger train and inauguration of new passenger service at Guwahati railway station. I take this opportunity to place on record my deep sense of gratitude to Honorable Minister for Railways, Sri Ashwini Vaishnav Ji, for your prompt initiative to address this public demand for the people of Bareilly and Mizoram. This train connection has long been a real and pressing requirement. Silchar and Siren are not merely stations on the railway map. They are lifeline of trade, education, healthcare, and social exchange. By connecting these two important nodes, the railway has significantly eased the journey of daily passengers, professionals, businessmen, patients, and common citizens while boosting tourism-related activities, local trade, and allied services. Moreover, I thank Honorable Minister for Railways for providing the new passenger facility under Indian Railways NI and FRI's scheme equipped with all modern amenities at Guwahati railway station, which adds to a world-class infrastructure and enhanced passenger experience. On behalf of the people of the region, I extend my heartfelt thanks to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi Ji and Honorable Railway Minister Sri Ashwini Vaishnav Ji for their deep commitment to responsive and people-centric governance by strengthening regional connectivity, which was left neglected before. I am confident that such initiatives will continue to bring the Northeast closer to the rest of the nation, fostering integration, growth, and shared prosperity. Thank you. आज इस शुभ दिन पर उपस्थित मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री श्री लालदू होमा जी, मेरे साथी श्री परिमल शुक्लाबैद्य जी, साथी श्री कनाड पुरकायस्था जी और आइजॉल में ऑनरेबल एमएलए श्री लालवेन चुंगा जी, रेलवे के सभी साथी उपस्थित, जीएम साहब, डीआरएम साहब, उपस्थित सभी अधिकारी और मीडिया के सभी साथी, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबको जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए जो काम किया है और एक फोकस लाए और बहुत सारे फंड्स देकर अच्छे से काम को एग्जीक्यूट करा है, वो सब आप सबको ज्ञात है। मैं फिर भी जानकारी देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी विश्वास करते हैं पूर्वोदय के विकास में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिलीव्स दैट फॉर विकसित भारत, फॉर अ डेवलप्ड कंट्री, द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शुड बी डेवलप्ड अलॉन्ग विद। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए हिस्टोरिक रेलवे बजट दिया है 11,486 करोड़ रुपीस का। 11,486 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट के बजट से बहुत सारे काम तेजी से हो रहे हैं। टोटल नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का इन्वेस्टमेंट है 72,468 करोड़। 72,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का। दिस विल टोटली चेंज द वे आवर पीपल, आवर citizens in the northeastern states, they travel, they communicate, they meet their relatives, and they do their business. The service which is started today, this is a service between Silchar and Siran. कुछ ही दिनों पहले ऑनरेबल एमपीज ने भी मुझे इसका रिक्वेस्ट किया था, उससे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसका रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि सिलचर एक कॉमर्शियल हब है नॉर्थ ईस्ट में, असम में, जो कि त्रिपुरा को
मिजोरम को, मणिपुर को, सबको सर्विस करता है। इसलिए बहुत जरूरी था कि सिलचर के साथ सायरंग का एक कनेक्टिविटी हो। और जो कुछ ही महीनों पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सायरंग की रेलवे कनेक्टिविटी इनॉग्रेट किया था, उसके बाद से कई स्टेप्स लिए गए हैं। जो नई गाड़ियां स्टार्ट की थी, दे आर नाउ स्टेबलाइज्ड, ऑपरेशन हैज नाउ बिकम वेरी स्मूथ, many challenges have been overcome already, and overall we are finding that people are giving a lot of positive feedback on the connectivity to Mizoram. And today's service will add one more dimension to the benefits that people of Silchar as well as people of Mizoram will be getting. Tourism will increase. It will be easier to buy the goods from Silchar, bring them to Mizoram, and also supply the goods manufactured in Mizoram to the market in Silchar. Today, one very interesting facility has been inaugurated at Assam. I hope that will be liked by the people. Overall, if you look at it, Assam को कनेक्टिविटी देने के लिए बहुत सारे, असम और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी देने के लिए बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और साथ ही साथ कई पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हुए हैं। इन 11 वर्षों में करीब 1900 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बने हैं। श्रीलंका के टोटल रेल नेटवर्क से ये ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। असम का इलेक्ट्रिफिकेशन 98% हो गया है और बहुत जल्दी 100% हो जाएगा। टोटल 2101 करोड़ के कॉस्ट से, इन्वेस्टमेंट से 60 स्टेशंस को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है। वंदे भारत स्लीपर, जो कि बहुत ही एक अच्छी सर्विस है, हाईली अप्रिशिएटेड सर्विस है, इसका इनॉग्रेशन भी आसाम से हुआ। असम और कोलकाता को जोड़ने वाली ये ट्रेन है। और अभी हाल ही में बजट में आपने जानकारी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन लाने का फैसला किया है। वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन आएगी, तो भविष्य में आने वाले समय में गुवाहाटी तक जाने का भी एक रास्ता इससे खुलता है। सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन आती है पश्चिम बंगाल में, तो आगे भविष्य में गुवाहाटी तक भी उसका डेवलपमेंट हो सकता है आने वाले वर्षों में। ओवरऑल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी पूरी तरह से चेंज होगी। भूटान के लिए कोकराझार से गेलफू न्यू लाइन बनेगी, बनारहाट से समस्ते न्यू लाइन बनेगी। फिर नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी शिवोक से रैंगपो का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कोकराझार से गेलफू, जो मैंने आपको बताया, इसका काम जल्दी चालू होगा। लैंड एक्विजिशन, परमिशंस वगैरह सब चल रही है, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है। वैसे ही दीमापुर से कोहिमा का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। जिरीबाम से इम्फाल में बीच में कुछ समय तक दिक्कत आई थी, अब काम उसका वापस चालू हो गया है। विशेषकर जो नोने पर्वत के पास में एक लैंडस्लाइड हुआ था बड़ा, उसके बाद में काम थोड़ा रुक गया था, अब काम वापस चालू हो गया है। ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रेलवे का बहुत फोकस है और इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। कई नई अमृत भारत सर्विसेज स्टार्ट हुई है, वंदे भारत सर्विसेज हैं। और अगर आप देखें कि 10-12 वर्षों पहले नॉर्थ ईस्ट को एक निगलेक्टेड एरिया माना जाता था, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं नॉर्थ ईस्ट में इतनी बार गए हैं और हर एक मंत्री को, सभी को फोकस करने के लिए हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का ध्यान देना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज ये नई सर्विस चालू होती है। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, और विशेषकर मिजोरम और असम के सभी निवासियों को, सिलचर के, आइजॉल के, भैरवी के, सारंग के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत
नमस्कार करना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much to our Honorable Minister of Railways, Sri Ashwini Vaishnaw, for that speech. This will be continued by the flagging off of the new passenger train service between Sairang and Silchar. We'll be requesting our Honorable Chief Minister to lead us in the flag off of this new train service, joined by all of our dignitaries. And also our Honorable MPs.